students, today we will continue this lesson deep water. So please, today we will discuss about the condition of the writer whose description in this chapter, William O. Douglas. My dear students, from this paragraph we will continue. I went to the pool when no one else was there. This is the statement of the writer of this lesson, William O. Douglas. I went to that pool that day. That time no one was there. बोला जब मैं वहां गया तो that time no one person was there around the pool. पूल के आसपास कोई नहीं था. यहां से हम स्टार्ट करेंगे. तो प्लीज ओपन योर बुक एंड know the meaning of this lesson. I went to the pool when no one else was there. The place was quiet. That time there was no person. The place was really very calm and quiet. This is the statement of a boy whose name is William O. Douglas. The water was also still and the tiled bottom was as white, as clean as a bathtub. I was timid about going in alone. In this paragraph, William O. Douglas wants to say, when I went to the pool, that time there was no boy, there was no person in that pool. Beginning, I was really very timid. I was covered. मैं बिल्कुल क्या था? डरा हुआ था. It means I was really very afraid of the time when I went near the pool. The water was still and the tiled bottom was white and clean as a bathtub. So in this way we can say the water of pool was really very clean of that time. हर चीज को each and everything can be seen in that pond. हर चीज उस पॉन्ड में देखी जा सकती थी. बिल्कुल यहाँ पे थोड़ा देखिएगा उसका यूज किया गया है पॉजिटिव डिग्री का कि बिल्कुल जैसे बाथरूम में टब के अंदर हर चीज देखी जा सकती है, बिल्कुल उसी नदी में उस पूल में हर चीज ऐसे देखी जा सकती है. बिल्कुल टाइल्ड भी बिल्कुल कैसा था? नीट एंड क्लीन था. आपने देखा होगा जब वाटर बिल्कुल काम रहता है, स्टिल रहता है, शांत रहता है और पानी जब बिल्कुल क्या होता है? क्लीन होता है, तो हर चीज देखी जा सकती है. तो यहाँ पर भी राइटर ऐसा ही बताना चाहता है कि बॉटम वॉज एज वाइट एज क्लीन एज अ बाथटब. आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन अलोन. व्हेन आई वेंट इन द पॉन्ड, जब मैं पॉन्ड में गया फर्स्ट टाइम, आई वॉज रियली वेरी अफ्रेड. I was alone that time. So I sat on the side of the pool. और बोला कि मैं पूल के, पॉन्ड के, उस तालाब के एक किनारे पे बैठ गया. To wait for others. और क्या? I was waiting for other boys. और मैं अन्य बच्चों का क्या कर रहा था? वेट कर रहा था. I had not been there long when in came a big bruiser of a boy probably 18 years old. He had thick hair on his chest. He was a beautiful physical specimen with legs and arms that showed ripping muscles. He had high skinny. How would you like to be ducked? My dear students, now you will have to understand the meaning of this paragraph and try to know about the condition of William O. Douglas of that time. I had not been there long. जब तक मैं लंबा टाइम नहीं हुआ था. I had not been there long when in came a big bruiser. Big bruiser, that is called the one type of. Do you know about the meaning of bruiser in here? Bruiser. B-R-U-I-S-E-R. Bruiser होता है, that is called the one type of bully. बुली एक जो जिसको हम बोल सकते हैं डेंजरस पर्सन, बुली.
जो वीक पर्सन को क्या करता है, डराता है, उसको बोला जाता है बुली। आपके लैंग्वेज में जिसको डॉन भी बोला जाता है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर ब्रूजर। ब्रूजर का मीनिंग बुली, हट्टा कट्टा इंसान। और जो किसी को क्या करता है, एक हेल्पलेस पर्सन को, यानी एक पुअर आदमी को, एक कमजोर आदमी को क्या करता है, डराता है, धमकाता है, उसको बोला जाता है ब्रूजर। दैट इज कॉल्ड द पर्सन whose physical build is really strong, यानी कि जो शारीरिक रूप से तंदुरुस्त दिखता हो, स्ट्रॉन्ग दिखता हो, उसको बोला जाता है बुली। तो यहाँ पे नरेटर कहता है, विलियम ओ डगलस कहता है कि आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग, मुझे ज्यादा टाइम नहीं हुआ था, व्हेन इन केम अ बिग ब्रूशर, और एक बहुत बड़ा हट्टा कट्टा आदमी आया। ब्रूशर का मतलब एक बुली टाइप का आया, एक शैंडबाज जिसको बोला जाता है, डराने वाला जिसको बोल सकते हैं, ऑफ अ बॉय, एक लड़का आया जो कि बिल्कुल ब्रूजर लगता था, एक बुली के जैसा लगता था, हड्डा कट्टा आदमी लगता था, प्रोबेबली 18 ईयर्स ओल्ड। और देखिएगा वो तो छोटा था, और बोला कि ही वाज अबाउट 18 और 19 ईयर्स ओल्ड, लगभग वो कितना था, 18 और 19 ईयर्स का था। ही हैड अ थिक ईयर ऑन हिज चेस्ट, और देखिए उसके चेस्ट पे क्या थे, बहुत घने बाल थे। तो उसको भी देख के वो बच्चा डर गया। यहाँ पे नैरेटर उससे क्या हो जाता है, थोड़ा डर जाता है, क्योंकि वो दिखने में क्या था, बिल्कुल ही हैज अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, जैसे जिम वाले के पास होती है अच्छी पर्सनैलिटी, ऐसा रहा होगा। तो बोला कि ही हैड थिक ईयर ऑन हिज चेस्ट, ही वाज अ ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमेन, और बोला कि उसका जो फिजिक था, दैट इज कॉल्ड द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, जो उसका शरीर की जो बनावट थी वो एक नमूना था। ही वाज रियली अ ब्यूटीफुल physique, he has a beautiful physique, he is really a specimen of beautiful physique। वो बिल्कुल एक नमूना था, एक बिल्कुल एक जीता जागता उदाहरण था, एक बहुत अच्छा आदमी था दिखने का, ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमेन विद लेग्स एंड आर्म्स दैट शोड रिपिंग मसल। और बोला उसकी जो लेग्स और आर्म्स दिख रही थी, बिल्कुल उसकी जो मसल थी वो एक चमकने वाली थी, हड्डा कट्टा इंसान था वो, एक बहुत तंदुरुस्त आदमी था वो। बोला उसको जब मैंने देखा तो क्या था, वो बहुत ही शक्तिशाली प्रतीत होता था। रिपिंग मसल, ही एल्ड, वो मुझे चिल्लाया। हियर इज द मीनिंग ऑफ एल्ड, YELLED। एल्ड का मीनिंग होता है क्राइड। उसने उसे एक पोलाइटली नहीं पूछा, उसको उसके ऊपर चिल्लाया, और यू कैन से स्पोक इन अ रूड मैनर, एक असिस तरीके से उसको बोला, उस पर चिल्लाया। क्या चिल्लाया, देखिए, ही हैड हाई स्किनी। स्किनी होता है जिसका केवल क्या होता है, दैट इज कॉल्ड द स्केलेटन, जिसमें केवल हड्डियां दिखती है, बहुत कमजोर, दैट इज कॉल्ड दैट पर्सन हैज रियली अ वेरी वीक एंड थिन, जो बिल्कुल कमजोर और दुबला पतला होता है, उसको बोला जाता है स्किनी। बहुत दुबला पतले बच्चे को क्या बोला जाता है, स्किनी बोला जाता है, जिसके लगभग ये माना जाता है कि उसको बोला जाता है, दुबला पतला ही बोले या आपके लैंग्वेज में स्किनी, आप जो सोच सकते हैं उसको सोचिए। मतलब वो बहुत ही बच्चा था, क्या था, बहुत दुबला पतला था। और एक तरफ वो क्या था, ब्रूशर था, जिसके पास के मैंने क्या बोला, ही हैज रियली अ स्ट्रॉन्ग फिजिकल, ही हैज अ ब्यूटीफुल फिजिक, जिसका फिजिक अच्छा था, चेस्ट में बिल्कुल डेंस यानी कि घने बाल, काले बाल थे। और दूसरी और इनके अदर साइड जो ये बच्चा था वो बिल्कुल कैसा था, दुबला पतला था। और उसको क्या बोला उसने, ए स्किनी, मतलब बहुत दुबले पत्ते, एक उसके टाइप के, वन टाइप ऑफ टॉन्ट, एक टाइप का उसके ऊपर ताना मारा कि इससे दुबला पतला बैठा आदमी बैठा है। तो बोला कि एंड हाई स्किनी, हाउ वुड यू लाइक टू बी डॉक्ड, आपको कैसा प्रतीत होता है जब आपको पानी में डुबोया जाए, दैट इज कॉल्ड द डिप। जब आप पानी में डुबोगे तो आपको कैसा प्रतीत होगा, तो हाउ वुड यू लाइक टू बी डक्ड, अगर तुम्हें पानी में डूबे तो वे कैसा लगेगा। तो फिर क्या कहता देखिएगा, विद दैट ही पिक्ड मी अप एंड टॉस्ड मी इनटू द डीप एंड, सो इन दिस वे वी कैन से ही वाज रियली अ वेरी वीक पर्सन। एक साइड तो जो यहाँ पे विलियम और डगलस नरेटर ऑफ द लेसन, वो बिल्कुल डरा हुआ था, और दूसरी तरफ वो आता है और उसको उठाता है और पानी में डुबो देता है और फेंक देता है, जैसे कोई चीज उठाई और
फेंक दिया, क्योंकि वो तो हड्डा कट्टा था। और दूसरी ओर जो नरेटर है इस लेसन का, विलियम ओ डगलस, वो बहुत क्या है, ही वाज रियली अ थिन बॉय। तो प्रोबेबली सॉरी what with that he picked me up and tossed me into the deep end, और उसने मुझे उठाया और एक सैलो तरफ नहीं बल्कि डीप वाटर में क्या करते मुझे फेंक दिया, मुझे डुबो दिया। into the deep end I landed in a sitting position, मैं बिल्कुल ऐसा लैंड हुआ जैसा मैं बिल्कुल बैठा हूं, जैसे किसी ने जैसे पत्थर फेंक दिया हो, जैसे कोई जैसे उसने फेंक दिया, तो ऐसा प्रतीत हुआ जैसा मैं बिल्कुल क्या हूं, बैठा हूं, बिल्कुल सिटिंग पोजीशन में मैं लैंडेड हुआ। आई लैंडेड इन अ सिटिंग पोजीशन, यहां पे लैंडेड का हियर में ना केम डाउन, मैं बिल्कुल नीचे पानी की जो सतह पे पहुंचा, उसके सॉरी बॉटम पे पहुंचा, तो बिल्कुल मैं मेरे को जैसा बिठाया हुआ था। इस टाइम में वो अपने उस टाइम को याद कर रहा है। आई लैंडेड इन अ सिटिंग पोजीशन, swallowed वाटर एंड went एट वंस द बॉटम, और मैंने कुछ पानी क्या कर दिया, शोलो कर दिया, निगल लिया, और बोला कि एंड वेंट एट वंस द बॉटम, और एक बार मैं सीधे बॉटम में पहुंच गया। आई वॉज फ्राइटेंड, यहां पे राइटर बोलता है, नरेटर बोलता है, दैट टाइम आई वॉज रियली वेरी फ्राइटेंड, मैं बहुत ही डरा हुआ था उस टाइम। बट नॉट येट फ्राइटेंड आउट माई विट्स, लेकिन बोला डरा तो था, बट नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट्स, लेकिन मैंने अपनी विट्स बोलते हैं दैट इज कॉल्ड द इंटेलिजेंस, मैंने अपनी बुद्धि को नहीं खोया था। भले उसने मुझे पानी में डुबो दिया था, उसने मुझे डीप एंड में फेंक दिया था, बट फिर भी मैं अपनी बुद्धि, यानी कि मैं उस समय ऐसा अनकॉन्शियस माइंड में नहीं था, मैं कॉन्शियस माइंड में था उस टाइम, मैंने अपनी बुद्धि नहीं खोई थी। फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट्स ऑन द वे डाउन आई प्लान, और जब मैं ऑन द वे था, जब मैं डूब ही रहा था, ऑन द वे डाउन जब मैं डूब रहा था, I planned, it means I had already set up plan in my own brain। यहाँ पे नरेटर कहता है कि जब मैं डूब रहा था तो उसी टाइम मैंने अपने दिमाग में क्या कर दिया था, प्लान बना लिया था। देखिए क्या प्लान बनाया, when my feet hit the bottom, जैसा मेरा पांव बॉटम में लगेगा, यानी कि उस पूल उस तालाब की बॉटम पे टच होगा, I would make a big jump, तो मैं क्या करूंगा, एक बहुत जितनी मेरे पे ताकत है एक बड़ा जंप मारूंगा, एक जंप करूंगा, कम टू द सरफेस, यानी कि पूरी जोर लगाऊंगा, जितने मेरे अंदर स्ट्रेंथ है पूरी स्ट्रेंथ को गैदर करूंगा, और क्या करूंगा, ऊपर की ओर जंप लगाऊंगा, कहां, सरफेस पे आने के लिए। कम टू द सरफेस, लाई फ्लैट ऑन इट, और फिर उसकी पे क्या कर दूंगा, लेट जाऊंगा, उसकी सरफेस पे लेट जाऊंगा, लाई फ्लैट ऑन इट एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल, और बोला फिर इस प्रकार से मैं क्या कर जाऊंगा, उसको तैर के क्या कर दूंगा, यानी कि पूल को तैर के किनारे पे आ जाऊंगा। इस प्रकार से उसने बोला कि हाउ कैन आई ओवरकम ऑफ दिस सिचुएशन, किस प्रकार से मैं इस सिचुएशन को पार करूं। तो वो बोला कि आई हैव ऑलरेडी सेट माई ओन प्लान व्हेन आई वाज गोइंग इनटू द वाटर, जब मैं पानी में डूब रहा था तो मैंने क्या कर दिया था, प्लान बना दिया था। इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन, ऐसा प्रतीत होता था कि ये बहुत गहरा है, ये बहुत लंबा रास्ता जो है वो बहुत लंबा लग रहा था उसको। इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन, दोज 9 feet वर मोर लाइक 19, जो पूल था जिसकी गहराई केवल 9 फीट थी, यहां पे राइटर को, नरेटर को, विलियम और डगलस को ये गहराई जो है लगभग 90 फीट लग रही थी। आप समझ सकते हैं कि उसका जो डर था, कितना डरा हुआ था। जो गहराई 9 फीट थी, वो 9 फीट उसके लिए क्या 90 फीट में टर्न हो चुकी थी, बदल चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि इसकी गहराई जो है 9 फीट नहीं बल्कि 90 फीट है। सो इन दिस वे वी कैन से नाइटर वाज रियली वेरी अफ्रेड ऑफ दैट टाइम व्हेन ही थ्रू इनटू द वाटर, जब उसने उसको पानी में फेंका तो बहुत ही क्या था, डरा हुआ था। Like 90 and before I touched bottom, my lungs were ready to burst। और बोला बॉटम को टच करने से पहले मेरे जो लंग्स था बिल्कुल फटने को, यानी कि ऐसा लग रहा था कि मेरे जो लंग्स है बिल्कुल कार्य करना क्या कर रहे हो, बंद कर रहा हूं, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि ये फटने ही वाले हैं। तो आई टच्ड बॉटम, माई लंग्स वर रेडी टू बर्स्ट, बट व्हेन माई फीट हिट बॉटम, लेकिन बोला जब मेरे पांव क्या बॉटम पे पहुंचे, आई समन्ड ऑल माई स्ट्रेंथ। माय डियर स्टूडेंट, हियर इज द मीनिंग ऑफ समन्ड। एनीबॉडी एज
Summoned, here is the meaning of summoned. Here is the meaning of summoned, that is got the gathered. बोला मैंने अपनी सारी शक्ति को जुटाया, अपनी सारी स्ट्रेंथ को क्या किया, इकट्ठी की, जितने मेरे पे ताकत थी मैंने उनको गैदर्ड किया. I summoned all my strength and made what I thought was a great spring towards. और जो मैंने सोचा था कि जैसा मेरा पांव क्या होगा, बॉटम को टच करेगा, मैं अपनी पूरी ताकत के साथ क्या करूंगा, ऊपर की ओर छलांग लगाऊंगा. तो मैंने ऐसा ही किया. सो इन दिस वे वी कैन से विलियम डगलस वाज रियली अ ब्रेव बॉय. ही वाज रियली इंटेलिजेंट बॉय. बहुत बुद्धिमान था. बोला कि मैं डूब रहा था लेकिन मैंने अपनी बुद्धि को नहीं खोया था. माय डियर स्टूडेंट, यू शुड नॉट फॉरगेट, इफ यू आर इन रियली वेरी बैड कंडीशन, नेवर lose your confidence. If you have courage, everything is possible. Without courage, we are not able to achieve our goal. So my dear students, please कभी भी अपने courage को खत्म मत होने दीजिएगा. Everything is possible if you have great courage. हर चीज संभव है अगर आप में क्या है, साहस है. तो यहां पर देखिएगा विलियम डगलस में अगर साहस ना होता तो डूब के मर जाता. तो यहाँ पे बोला जो प्लान मैंने बनाया था जब मैं डूब रहा था कि मैं जैसा मेरा पांव क्या होगा, बॉटम पे पहुंचेगा तो मैं अपनी पूरी शक्ति के साथ ऊपर की ओर छलांग लगूंगा, और मैंने वैसा ही किया. बट व्हेन माय फीट हिट बॉटम आई समड ऑल माय स्ट्रेंथ एंड मेड व्हाट आई थॉट वाज अ ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड्स. आई इमेजिन्ड आई वुड बॉब टू द सरफेस लाइक अ कॉर्क. और तब मैंने सोचा कि मैं कॉर्क की भांति उसकी सरफेस पे, यानी कि तालाब की, यानी कि जो पूल है उसकी सरफेस पे तैरता हुआ आ जाऊंगा. ऐसा विलियम डगलस का क्या था, सोचना था, यानी कि सोचा उसने, वो प्लान किया उसने कि आई इमेजिन, मैंने ऐसी कल्पना की, आई वुड बॉब टू द सरफेस लाइक अ कॉर्क. इंस्टेड आई केम अप स्लोली. लेकिन बोला कि इसके वजह, इसका जो रिजल्ट था, बल्कि मैंने बोला एक साथ, एक झटके के साथ, एक कॉर्क की तरह मैं क्या करूंगा, उसकी सतह पर आ जाऊंगा. लेकिन बोला इसके अपोजिट क्या हुआ, मैं धीरे धीरे उसकी सरफेस पे पहुंचा. केम अप स्लोली, आई ओपन माई आईज एंड सॉ नथिंग बट वाटर. और बोला व्हेन आई ओपन माई आईज एवरीथिंग इज वाटर. बोला जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मेरे चारों ओर क्या था, बिल्कुल पानी ही पानी था. आई ओपन माई आईज एंड सॉ नथिंग बट वाटर, वाटर दैट हैड अ डर्टी येलो टिंज. और बोला जो पानी था वो भी बिल्कुल क्लीन नहीं दिख रहा था, बिल्कुल येलो टिंज जैसा दिख रहा था. येलो टिंज टू इट आई ग्रू पैनिकी. और बोला मैं तो बहुत क्या हो गया था, पैनिकी हो गया था, मैं बहुत ज्यादा घबरा गया था. वो बहुत घबराया हुआ था. बोला मैं बहुत ज्यादा पैनिकी हो गया था. जैसे माय डियर स्टूडेंट्स, नाउअडेज यू कैन इमेजिन, आप इमेजिन कर सकते हैं, लोग कोरोना वायरस से बिल्कुल पैनिक होते जा रहे हैं. सेम वही उसके साथ था. बोला जब मैं आया तो जो बिल्कुल एक क्लीन वाटर था वो भी मेरे को येलोइश कलर में लग रहा था, और मैं बिल्कुल क्या हुआ था, पैनिकी हो गया था, जैसे लोग आजकल घबराए रहे हैं. तो माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज बी अलर्ट ऑफ दिस डिजीज एंड अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस को बरकरार रखें. या आई कैन बीट दिस डिजीज. मैं इस कोरोना वायरस को क्या करा सकता हूं, आई एम एबल टू डिफीट दिस डिजीज. तो यहीं पे लिखा आई ग्रू पैनिकी. तो बोला कि मैं पैनिकी हो गया था, मैं बहुत घबरा गया था. आई रीच्ड अप एज इफ अ ग्रैब अ रोप एंड माय हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर. आई वाज सफोकेटिंग. और बोला मेरी तो क्या हो गया था, सफोकेटिंग भी हो गया था. आई वाज सफोकेटिंग. आई ट्राइड टू येल बट नो साउंड केम आउट. और बोला जैसे एक नाइटमेयर होता है, कभी हुआ होगा आपको, कि जब आप चिल्लाना चाहते हैं और आवाज मुंह से बाहर नहीं आती, तो बिल्कुल विलियम ओ डगलस के साथ ही ऐसा हुआ. और वो कहता है कि मैं बोलना चाहता था, YALL, एल, एल का मीनिंग होता है YALL. एल का मीनिंग होता है क्राई, स्पीक. मैं बोलना चाहता था, आई वॉन्ट टू टॉक, आई वॉन्ट टू टेल. मैं बताना चाहता था, मैं बोलना चाहता था कि आई ट्राइड टू एल, मैंने बोलने की कोशिश की. आई ट्राइड टू एल बट नो साउंड केम आउट. बोला कि मेरे मुंह से तो कोई आवाज ही नहीं आई. मैं बोलना चाहता था, मैं किसी को पुकारना चाहता था, प्लीज हेल्प मी एटसेट्रा. तो बोला था दैट टाइम
नो साउंड केम फ्रॉम माई माउथ, मेरे मुंह से कोई आवाज ही नहीं आई, नो साउंड केम आउट, देन माई आईज एंड नोज केम आउट द वाटर, और बोला जब मेरे आईज और नोज क्या है, पानी से बाहर आए, आउट ऑफ द वाटर, बट नॉट माई माउथ, लेकिन मेरा मुंह अभी भी क्या था, पानी में ही था. सो इन दिस वे वी कैन से विलियम डगलस वाज रियली इन वेरी dilapidated condition of that time, very pathetic condition of that time. He was really very afraid of this situation. इस स्थिति में वो बहुत डरा हुआ था. बोला कि अभी भी मैं डरा हुआ था. I flailed at the surface of the water. और बोला फ्लेल्ड की तरह मैं पानी की सतह पर ऊपर आया. Swallowed and choked. और बोला कुछ पानी तो मैंने निगल भी लिया था और कुछ पानी मेरे में चॉक्ड भी हो गया था. The water swallowed and choked. I tried to bring my legs up, but they hung as dead weights. मैं अपनी लेग को क्या करना चाहता था, उठाना चाहता था, यानी कि एक तैरने की एक एक्सरसाइज होती है जिसमें लेग्स और हैंड्स क्या होते हैं, मूविंग करते हैं. तो बोला कि दैट टाइम आई वाज अनएबल टू डू, मैं करने में सा, बट दे हंग एज डेड वेट्स, बिल्कुल ये तो डेड वेट्स के जैसे थे, पैरालाइज एंड रिजिड, और ऐसा प्रतीत होता था कि जैसा पैरालाइज हो गया हो, मेरे हाथ पांव काम करना क्या कर दिया हो, बंद कर दिया हो. तो सो इन दिस वे वी कैन से ही वाज टोटली एनर्जी लेस ऑफ दैट टाइम, उसके अंदर जो एनर्जी थी वो खत्म हो चुकी थी, मानो ऐसा प्रतीत होता है उसकी बॉडी को क्या हो गया, पैरालाइज हो गया हो, उसके हाथ पांव काम नहीं कर रहे हो. एंड रिजिड, और उसका जो शरीर था बिल्कुल जकड़ गया था, रिजिड हो चुका हो. अ ग्रेट फोर्स वाज पुलिंग मी अंडर, और बोला एक बड़े फोर्स ने मेरे को और नीचे क्या कर दिया, डुबो दिया. पुलिंग मी अंडर, आई स्क्रीम्ड बट ओनली द वाटर हर्ड मी. ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंडीशन ऑफ विलियम ओ डगलस हियर. बोला मैं चिल्लाया लेकिन केवल पानी ही मेरी आवाज को सुन सकता है, ऐसा उसका मानना था. मैं पानी के अंदर से चिल्लाया लेकिन बोला केवल पानी ही मेरी आवाज सुन सकता था, अदरवाइज कोई नहीं. तो इतनी बुरी कंडीशन में विलियम ओ डगलस तब था जबकि एक ब्रूशर वहां पे आया और उसको उठा के सीधे नदी में यानी उस पूल में डाल दे. वो भी क्या, डीप एंड ऑफ द पूल, गहरे पानी में उसको डुबो दिया. तो पैरालाइज एंड रिजिड, अ ग्रेट फोर्स वाज पुलिंग मी अंडर, आई स्क्रीम्ड बट ओनली द वाटर हर्ड मी. केवल पानी ने ही शायद मुझे सुना होगा. I had started on the long journey back to the bottom of the pool. और बोला कि मुझे बहुत लंबी जर्नी तय करनी पड़ी, बहुत स्ट्रगल करना पड़ा एक वाटर के सरफेस में आने के लिए, पूल के सरफेस में आने के लिए, उस तालाब की सतह पे आने के लिए मुझे बहुत ज्यादा क्या करना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा. सो इन दिस वे वी कैन से विलियम डगलस वाज रियली इन वेरी बैड कंडीशन इन द स्विमिंग पूल. उस स्विमिंग पूल में बहुत ही दुखदायी स्थिति में था. बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल, आई स्ट्रक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन. आई स्ट्रक एट द वाटर, और बोला जितना मुझे जोर आजमा सकता था, जितना मेरे अंदर कैपेबिलिटी थी, जितने अंदर मेरे अंदर सांस थी, मैंने किया. आई स्ट्रक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन, जैसे मैं नीचे गया, एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ, मैंने अपनी जो स्ट्रेंथ थी पूरा एक्सपेंड किया, जितना जोर मैं लगा सकता था, जितना बचने की कोशिश मैं कर सकता था, मैंने किया. एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ एज वन इन अ नाइटमेयर फाइट्स एन इररेसिस्टिबल फोर्स. और बोला इररेसिस्टिबल फोर्स, जितनी ताकत कर सकता था, लेकिन बोला ये तो एक बिल्कुल नाइटमेयर के जैसा था, एक बुरा सपने के जैसा था. इररेसिस्टिबल होता है ओवरपावरिंग, आप करने की आप पूरी जोर लगा रहे हैं लेकिन आप उसमें कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, आप उसके ऊपर ओवरकम नहीं कर सकते हैं, इसको बोलते हैं इररेसिस्टिबल. आप जोर लगा रहे पूरी लेकिन आप उसमें कुछ नहीं कर सकता. बोला ये तो मेरे लिए क्या था, इट वॉज द टाइम फॉर मी लाइक अ नाइटमेयर. ये जो पल था मेरे लिए, ये टाइम था बिल्कुल एक बुरा सपना जैसा था, जिसको हम नाइटमेयर बोलते हैं. कभी अगर हमारे को ऐसा बुरा सपना आ जाता है, हम चिल्लाना चाहते हैं लेकिन मुंह से बाहर आवाज नहीं आती. तो विलियम डगलस के साथ भी ऐसा ही हुआ, कुछ बोलना चाहता था लेकिन बोला जितनी ताकत मैं लगाना चाहता था, मैं ऊपर उछलने की कोशिश करता, लेकिन इट वाज रियली अ नाइटमेयर फॉर मी. ये तो मेरे लिए बुरा सपना जैसा था. नाइटमेयर फ्लाइट्स इन इररेसिस्टिबल फोर्स, आई हैड लॉस्ट माय ब्रेथ.
और बोला मैंने अपनी सांसें खो चुकी थी, माना ऐसा प्रतीत होता है कि जैसा मैं मर गया हो। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ, जितने मेरे अंदर क्षमता थी, पावर थी, सांस था, सांसें थी, वो ऐसा प्रतीत था मैंने खो चुकी है। माई लंग्स एक्ट, और मेरे जो फेफड़े थे, लंग्स थे, वो भी एक्ट करने लगे, मुझे पेन देने लगे। माई हार्ट थ्रॉब्ड, आई वॉज गेटिंग डिजी, और बोला कि मेरा जो हेड है वो भी क्या कर रहा था उस टाइम, थ्रॉब्ड कर रहा था, बिल्कुल धक धक कर रहा था। एंड आई वॉज गेटिंग डिजी, ऐसा प्रतीत होता है डिजी। डू यू नो अबाउट द मीनिंग ऑफ डिजी हियर? दैट इज कॉल्ड द चक्कर आना। बोला कि उस समय क्या है जिसको हम बोलते हैं गिडी। डिजी का मीनिंग क्या होता है यहां? तो वो बिल्कुल अनकॉन्शियस फील कर रहा था, बोला कि मुझे वॉमिटिंग हो रही थी और मेरा सिर क्या कर रहा था, बहुत पेन कर रहा था, मेरे लंग्स पेन कर रहे थे। इट मीन्स वो हर तरह से क्या हो गया था, हेल्पलेस हो चुका था। गेटिंग डिजी, और मुझे चक्कर भी आ रहे थे उस टाइम। आई वॉज गेटिंग डिजी बट आई रिमेंबर दैट स्ट्रेटजी, लेकिन उस टाइम भी जो स्ट्रेटजी मैंने बनाई थी मुझे अच्छी तरह से क्या थी, याद थी। I would spring from the bottom of the pool and came like a torch to the surface. उसने योजना बनाई थी, जैसा ही मेरा पांव बॉटम पे आएगा पूरी ताकत के साथ मैं क्या करूंगा, ऊपर की तरफ छलांग लगाऊंगा, जंप करूंगा और मैं पानी की सतह पे, पूल के सरफेस तक पहुंचूंगा। बोला ऐसी कंडीशन होने के बावजूद भी मैंने अपना दिमाग को नहीं खोया था। Surface, I would lie flat on the water, strike out with my arms and thrash with my legs, then I would get to the edge of the pool and be safe. और इस प्रकार से बोला कि फिर मैं क्या हो जाऊंगा, सुरक्षित हो जाऊंगा। Okay, then I would get to the edge of the pool and the safe. और इस प्रकार से मैं तालाब के किनारे पे आ जाऊंगा और मैं सुरक्षित हो जाऊंगा। That's enough for today, my dear students. Please spend the time and read that chapter. Read this chapter thoroughly. This is really very interesting chapter, and one day this chapter will help you how to achieve our goal. Thank you, class.